much, Shweta ji, for that overwhelming introduction. And I think I was just remembering that in one of my lectures, after I spoke in a program, this was a young audience. This was in the early days. And after the lecture, I asked any questions. And then one boy raised his hand and I said, okay, ask the question. So he said, no, I had a question, it is answered. So I said, what was your question? He said, I was going to ask, when are you going to stop? So when you see role of spirituality, as soon as people see that word, they, are not always sure what to expect. So therefore, role of spirituality, everybody understands if it is standalone. But in business, when you add, it creates little more intrigue and confusion, because I was trying to give a prasad to one young boy, and then he looked at the prasad and said, nahi lunga, nahi lunga, nahi lunga. I said, अरे क्या हो गया भाई, गीता में देता हूँ, लोग मना करते समझ सकते, प्रसाद क्यों नहीं लेगा? वो बोलता मुझे डर लगता है कि इसको लूंगा तो मेरा भी हेयर स्टाइल आपके जैसा हो जाएगा. तो ये टॉपिक का कॉम्बिनेशन देख के हो सकता है कई लोगों को घबराहट हो गई हो. रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस, मतलब हमारा बिजनेस बढ़े और मंदिर बढ़े. सो देयरफॉर I think a very, very important topic, and thank you, Shweta ji, for speaking so eloquently on various subjects connected to the growth of the country and on the foundation of Sanatan Dharma. And thank you to our World Hindu Economic Forum team that you have put this platform together. Dharma, basically in terms of the Ramayana, if you see, Ram, Lakshman, Bharat, Shatrughna. Because practically speaking, India was running like a Ram Rajya for a very, very long period of time, as the presentations also showed. But most people are currently in a situation in India where some faith is there, some interest is there, but they do not have the proper, detailed, in-depth understanding of the spiritual subject. And that's a huge challenge which today's political generation and thought leaders need to work upon, because in my own personal experience within ISKCON, I have seen that when we take this knowledge of the Gita and the Bhagavad Puran and present it to various nationalities across the whole world who have no previous exposure of even Krishna, have never heard the word Ram before, whether it is America, South America, Mexico, Russia, Ukraine, China, Africa. So many of my experiences have been such that the spiritual content is very powerful, which we have as part of Sanatan Dharma. But the problem is with the way we present it. And because of lack of presentation, many times people are not able to connect with it. Because I have personally seen people coming from all kinds of other religious backgrounds taking up to Sanatan Dharma tradition, not just in a superficial manner, but in the form of becoming practitioners in their lives, making major changes in their lifestyle, and dedicating themselves to this path. So I'll begin with a small story of when Swami Prabhupada, the founder of ISKCON, reached London. He was asked by a reporter, Swamiji, why you have come here? What is the purpose of your visit? And Swami Prabhupada said that for the last 300 years, the British have been looting India of all kinds of wealth. सोना, चांदी, हीरा, मोती सब लूट लूट के लेके गए, लेकिन भारत से सबसे अनमोल रत्न लूटना भूल गए, वो है भगवत गीता. उसका होम डिलीवरी करने आया हूं. और तब से लेके आज तक पूरे विश्व में
इस्कॉन ने ऑलमोस्ट 55 करोड़ भगवत गीता वितरित कर दी है। एंड because of the background I am coming from for last 30 years, I've had the exposure of connecting with multiple nationalities and seen the effect the Gita and the Bhagavad has in people's lives and how they are, constantly meditating only on one thing, how to come to Bharat. और आप विश्वास नहीं करोगे, अमेरिका में मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो 1970 से ड्रीम कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 2 घंटा जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, प्रचार भी करते हैं, लेकिन पैसे जुटा नहीं पाए भारत विजिट करने। तो हमको लगता है कि यहीं पर केवल गरीबी है, ऐसा नहीं है, हर जगह है। और लोग अपने मन में केवल एक ही स्वप्न लेके, कई लोग मैं जानता हूँ कि भाई एक बार वृंदावन आ सकें, एक बार मायापुर आ सकें, है कि नहीं। तो आप लोगों को समझना होगा कि वास्तव में जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ा है कि धर्म को और अर्थ को एक साथ जोड़ना, क्योंकि श्री रामचंद्र जी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ धर्म। Representation of that dharma basically means that which holds the spiritual values, holds those traditions which actually show us the true north. Ramchandra ji basically is a representative of that. Ramante yogino anante satyananda chidatmani iti ram padena so param brahma vidiyate. राम शब्द का अर्थ है कि आनंद के सागर, इज एन ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ जॉय। सो क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू वी बिकम जॉयफुल। और जैसे श्वेता जी ने कहा, ये तो अपने बिजनेस कर रही थी, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम शी फेल्ट कि भाई जब तक हम सेवा में नहीं उतरेंगे संतोष नहीं है। तो रामचंद्र जी के अनुज जिनका नाम है लक्ष्मण, ही रिप्रेजेंट्स अर्थ। अब आप कहोगे ये कैसे। तो वाल्मीकि रामायण में सब कुछ है, अपने शास्त्रों में सब कुछ है, लेकिन कहीं तो एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसके कारण वो ज्ञान और भारतीय युवा दोनों के बीच एक अंतराल आ गया। There is an obstacle in the communication because of which all the problems have started. Otherwise, the core DNA of the Indian youth is to lap up spirituality like a sponge within moments. So, लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या है। सर्वं प्रियकरस्तस्य रामस्यपि शरीरत लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहिर्प्राण इव पर। So Valmiki Ramayana says the meaning of word Lakshman is that Lakshman represents, Lakshman word comes from Lakshmi. तो आज का टॉपिक ही है इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। बिजनेस मीन्स लक्ष्मी अर्थात अर्थ। सो लक्ष्मण इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्थ। तो आप कहोगे क्या यार 14 साल तो यार वो रामचंद्र जी चले गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के गए, अयोध्या की राजनगरी छोड़ के जो वन में भटक रहे थे वो कहाँ से लक्ष्मी संपन्न हो गए। तो वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिर्प्राण इव पर। वो लक्ष्मी संपन्न थे। अरे हाउ कैन यू कॉल हिम लक्ष्मी संपन्न। ही हैड टू गिव बैक, ही हैड टू एक्चुअली पुट असाइड लक्ष्मी एंड गो। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स पीपल हैव कि भाई धर्म के साथ जुड़ेंगे तो लक्ष्मी असंपन्न तो नहीं हो जाएंगे, लक्ष्मी छोड़नी तो नहीं पड़ेगी। लाइक वन बिजनेसमैन फ्रेंड ऑफ माइन, गुड नाइस Hindu person, also practices many of the spiritual things. He came up to me one day, मंदिर में आए, सैफरन टी शर्ट पहने हुए थे। तो मैंने कहा, अरे भाई आज आप बिल्कुल हमारे जैसे वस्त्र पहने। बोले क्या बात है। तो कहते हैं मार्केट ठीक नहीं है। तो मैंने कहा अरे वो तो ठीक है, लेकिन वैसे आपका देखा जाए तो केवल इट्स जस्ट अ डेल्टा लॉस इन योर प्रॉफिट। दुनिया के हिसाब से तो आप कोई दूसरे लेवल पे हो, लेकिन हाँ, लेकिन जो भी हो थोड़ा घटता है तो दर्द ही होता है ना। तो
मैंने कहा क्या सोच रहे हो? तो ही सेड, मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है, जैसे सागर में जल, लाइक वाटर इन एन ओशन, लेकिन इतना धन होने पर भी अंदर मेरी प्यास ही नहीं बुझ रही है. आई एम नॉट एबल टू क्वेंच माई थर्स्ट, जस्ट लाइक सॉल्ट वाटर. नमकीन पानी है, कितना भी पियो प्यास नहीं बुझती. लेकिन गौरांग प्रभु, मैं देख रहा हूं कि आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में लगे हो, तो आप बड़े संतुष्ट लग रहे हो. आपके पास ये आध्यात्म का कुएं का मीठा जल है. सो यू गॉट अ वेल वाटर. तो मैं कहता हूं कि आप मुझे अपने कुएं के जल का 2 बूंद दीजिए. तो मैंने कहा जरूर लीजिए 2 बूंद कुएं का, और आप अपने सागर का 2 बूंद मुझे दीजिए. इतना क्या कहा, 6 महीने तक गायब ही हो गए वो. So many times the dichotomy which we are facing is the dichotomy which Arjuna was facing on the battlefield, where he felt action and renunciation cannot come together. The fundamental principle of Hindu thought is, can you ever marry action with renunciation? Prima facie मैचमेकर विल थिंक, अरे ये शादी नहीं बनेगी. एक्शन एंड रिनंसिएशन, कर्म और वैराग्य, ये साथ में कैसे आ सकता है? अरे यही तो हम लोगों की स्पेशलिटी है. हम ही, अर्थात जो सनातन धर्म ट्रेडिशन के अंदर जो कुछ भी आप देखो, जो अभी स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, ये सब कैसे हो पाया? इट वॉज नॉट जस्ट GDP, it was prosperity. It was not 35% of the world economy with 45% kids being born out of marriage. It was not prosperity with 300 million people experiencing stress symptoms. It was not increase in GDP, 35% GDP with almost 370 suicides a day as we see today. तो इसलिए जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो अब जो जनवरी में राम मंदिर में राम लला जी आएंगे और मंदिर का उद्घाटन होगा, तो देखिए हम पिछले लगभग 30 वर्षों से मैं इस्कॉन में हूँ. मंदिर हमने बहुत बनाए हैं, ठीक है. भारत में अभी भी 20 लाख मंदिर हैं, अस्पताल केवल 70,000 हैं. तो भारत हमेशा मंदिर प्रधान देश ही होगा. लेकिन आज जो सबसे अधिक आवश्यक है, वो केवल लोगों को अपने ही सनातन धर्म के ज्ञान को सिखलाना, कि भाई अपने ही ज्ञान ग्रंथ के अंदर क्या दिया है उसको बस कुछ खोल के समझिए, थोड़ा समझिए उसको. और जब समझोगे तब आप जानोगे कि हाँ भाई, जो कुछ मुझे जानकारी चाहिए वो सब यहीं पर है. तो इसलिए लक्ष्मण की जब हम बात करते हैं, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहिर्प्राण इव पर. जैसे मैं लेक्चर दे रहा था कि भाई आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी स्पीक अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वी शुड नॉट सिंपली लुक एट increase in wealth, increase in property. Yes, that is also part of artha. But do we want situation like in many parts of the world where economic development is happening and society is falling apart? I was giving a lecture in, a college in America. This was near West Virginia. And after my lecture, one young student walked up to me, American boy, 21-22 साल की उम्र होगी, और मुझसे हिंदी में बोलने लगा. तो मैंने कहा यार तू तो दिखता है अमेरिकन, बोल रहा है हिंदी, तो क्या है, इंडियन है, अमेरिकन है, क्या है? बोलता है मैं तो अमेरिकन हूँ, कैलिफोर्निया में बॉर्न था.
तो बोला हिंदी कैसे बोलता है? तो कहता है मैं करोड़पति बाप का बेटा था, पिताजी ने मुझे सब कुछ दिया, और जब मैं 17 साल का हुआ मैंने पिताजी को कहा कि पिताजी आपने मुझे टेनिस कोर्ट्स दिए, आपने मुझे गोल्फ कोर्स दिया, बड़ा आलीशान महल दिया, इतना कुछ दिया, लेकिन फैमिली क्या है उसका एक्सपीरियंस नहीं दिया, बिकॉज व्हेन आई वाज 2 years old यू वर डिवोर्स्ड एंड आई ग्रू अप इन एन एम्प्टी हाउस। अब मैं 17 साल का हो गया, मेरी एक ही इच्छा है कि भाई परिवार क्या होता है, परिवार के सदस्य बैठ के जब एक दूसरे के साथ भोजन करें, कुछ स्नेह की बातें करें, कुछ अलग अलग उत्सव मनाएं, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट। और टुडे अ कंट्री लाइक लग्जमबर्ग हैज 88% divorce rate, Spain has 65% divorce rate, France has 55% divorce rate, Russia has 51% divorce rate, America has 46% divorce rate. The global divorce rate is 44%. India still has the lowest divorce rate in the world at 1% as of now. As of now. I must add once more. As of today. Right. And then his father paid him a ticket to go to India. He took a flight, came to, Varanasi, went to somebody's house and said, बहुत साल पहले की बात है, उनके घर पे जाके कहता है कि मुझे अपने घर पर पेइंग गेस्ट बना लो, क्योंकि वहाँ उसने देखा पेइंग गेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल, क्योंकि वाराणसी में बहुत वेस्टर्नर्स वगैरह आते हैं, तो पेइंग गेस्ट फैसिलिटी। तो अंदर जाके बोलता है कि भाई मुझे केवल एक ही लक्ष्य है आने का, परिवार क्या है जानना है, आपके परिवार में जो है 5-6 मेंबर हैं, उनके साथ मैं रहूँगा, मतलब अपना रूम रहेगा, लेकिन जो भी खाना पीना है साथ में करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी तो धन जो कुछ दे सकता है वो तो मैं एक्सपीरियंस कर चुका, लेकिन ये पारिवारिक स्नेह क्या है इसको मैं अनुभव नहीं कर पाया, और इसके लिए मैं 2 साल यहाँ रहूँगा आपके साथ, और 2 साल रहने के लिए अगर आप मुझे ये कमरा दोगे तो हर महीने मैं 1 लाख रुपए रेंटल देने के लिए तैयार हूं। वो फैमिली बोला 2 साल क्यों, जिंदगी भर रहो। और फैमिली ने कहा आपके दूसरे भी फ्रेंड होंगे जिनको एक्सपीरियंस करना होगा, उनको भी बुला लो, हम तैयार हैं। तो देखिए, as per Vedic Sanatan Dharma, there are 3 types of families. And the whole Ramayana is centered around family. Whole Mahabharata is centered around family. So, our biggest GPS with respect to Dharma is given through Mahabharata and Ramayana and the Puranas. And they all speak about family only. Because the foundation for artha is dharma, but the foundation for dharma is the family. Because that's where we learn our tradition. That's where we learn our संस्कार. मैं कहता हूं भैया मार्केट में जाके पैसे दे के कार खरीद सकते हो, पैसे दे के संस्कार नहीं खरीद सकते. And that's a fact. And therefore, when all of us realize this fact, that the family is the unit, and 3 types of families are described in the Sanatan Dharma tradition. First is Parthivras. Parthivras is basically I please you, you please me, as long as our relationship is based on selfishness, तब तक ये रिलेशन बना रहेगा, अन्यथा फिनिश, छोड़ो, ये नहीं जम रहा है. So Parthivras foundation is selfishness. As Shweta ji talked about intention, स्वार्थ के आधार पर. तो ये स्वार्थ अर्थ का नाश करता है. स्वार्थ के आधार पर भले आप कुछ कमा लो, लेकिन फिर बाकी संबंधों के ऊपर उसका असर पड़ेगा और धीरे धीरे हम वो नहीं कर पाएंगे जो करना चाहते हैं. So therefore, if you see, more or less the narrative is moving in the direction of let me maintain a relationship as long as what is in it for me, me. अहंकार और स्वार्थ.
महाभारत और रामायण देखो तो भले पात्र बहुत हैं, कैरेक्टर्स बहुत हैं, लीलाएं बहुत हुई, लेकिन फोकस किसके ऊपर है? द एंटायर स्पॉटलाइट ऑन व्हाट टू अवॉइड एंड द स्पॉटलाइट ऑन व्हाट टू फॉलो. सो व्हाट टू अवॉइड में प्रोमिनेंट क्या है? ईगो एंड सेल्फिशनेस. कैकेयी का ईगो, मंथरा का ईगो, और यहां दुर्योधन और धृतराष्ट्र का ईगो. तो हमको लगता है भाई कोविड सबसे बड़ा जो था खतरनाक वायरस था, या ये फलाना फलाना वायरस, ये एपिडेमिक. अरे किसी भी एपिडेमिक, किसी भी वायरस से कितने लोग मरते हैं, लेकिन ईगो, अहंकार और स्वार्थ एक ऐसा खतरनाक वायरस है जिसके कारण 18 दिन में 64 करोड़ सैनिक मारे गए. सो विच एपिडेमिक हैज किल्ड 64 करोड़ पीपल in such a short period of time? So therefore, the first principle of family is parthiv ras, which means I maintain relationship just because it is mutually convenient. And then that goes into business. It's a thought process, and it does not restrict to family. What you learn in the family, then you carry with you and take it in the business also. And right at the beginning, you are not very pure in your intention towards your business partner, towards your customer, towards your other stakeholders. And therefore, this selfishness, this narrative of selfishness, this narrative of ego becomes the bloodstream in all our facets of life. So when we speak about role of spirituality in the growth of business, why India was doing what it was, as they say, in those good old days, जो सोने की चिड़िया थी, वो सोना धूर्तता के ऊपर, स्वार्थ के ऊपर, छल के ऊपर नहीं तैयार किया गया, वह निस्वार्थ सेवा भाव के ऊपर तैयार किया गया. तो इसलिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि भाई व्हेन वी कम टुगेदर, व्हाट इज द इंटेंशन बेस्ड ऑन विच वी आर हैविंग दोज रिलेशनशिप्स, राइट? जस्ट लाइक मैं स्टोरी सुनाता हूँ. 3 दोस्त आए और कहते हैं कि भाई चलो हम लोग एक स्टार्टअप करते हैं, है ना, आजकल बड़ा चल रहा है स्टार्टअप का जोश. तो तीनों आए, लेकिन तीनों के मन में जो था कुछ ना कुछ था कि भाई कैसे भी करके हम थोड़ा अधिक उसमें से निकाल लेंगे और टाइम पर बाकी दोनों को हम छोड़ देंगे. तो द इंटेंशन वॉज नॉट प्योर. तो फिर उन्होंने अपना हाथ वाथ मिलाया और प्लान वैन फाइनल किया और फिर कहा कि चलो भाई सेलिब्रेट करते हैं, तो चलो खीर बनाते हैं और खीर आपस में हम लोग जो है खा के फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं. तो खीर बनाया तो बहुत कम खीर बना. तो उन्होंने सोचा अरे इतना कम खीर है, तीनों में डिवाइड करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ऐसा करते हैं खीर को रख देते हैं फ्रिज में, ठंडा खीर मज़ा आएगा, अगले दिन सुबह हम उसको खाएंगे, लेकिन हम तीनों में से एक ही खाएगा. और कौन खाएगा? जिसको रात को सबसे बढ़िया सपना आएगा वही खाएगा. उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं. तीनों सो गए. सुबह उठे, पहले ने कहा मेरे रात को सपने में मैंने देखा कि मैं ब्रह्मलोक गया था और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आया. दूसरे ने कहा कि ये कोई सपना था क्या? मैं तो शिवलोक गया और शिव जी को प्रणाम करके आया. फिर तीसरे को देखा, पूछा तेरे सपने में कौन आया? तीसरे ने कहा मेरे सपने में बजरंगबली हनुमान आए और मुझे मुक्का दिखा के बोले खीर खा ले. तो भागे भागे जाके उन्होंने देखा अंदर फ्रिज के अंदर खीर गायब था. तो बोले यार तू हमको उठाया नहीं और बिना पूछे खा लिया. बोले मैं आया था ढूंढने, लेकिन तुम ब्रह्मलोक गए थे, तुम शिवलोक गए थे, हम क्या करें.
So many times we underestimate the value of intention, feelings, and inspiration. But if you analyze, Kaikeyi was a very ardent follower of Ram. She had the intention of seva to Ram. But Manthara brainwashed her and changed that by creating insecurity. Duryodhan basically means one who is always fighting for the wrong cause. What was his cause? I am the number one. I should always be the number one. I should be the best. और कहा जाता है कि गर्मी के समय दुर्योधन अपने ऊपर किसी को छतरी भी उठाने नहीं देता था. क्यों? उसको लगता था nobody can be above me, including umbrella. That was the extent of his ego. So therefore, the family is the place where any kind of spirituality you are talking about will first get inculcated. क्योंकि जब घड़ा कच्चा होता है, मट्टी कच्चा होता है, तब घड़े को बनाना पड़ता है. And therefore, from the age a person is born till the age of 13, 14, 15, they are exposed majorly to impressions from the family. And therefore, Parthiv Ras is what we are seeing across the world with the statistics I shared, selfishness. The second is Swargiya Ras. The second kind of family is Swargiya Ras, which means there is a willingness to sacrifice by a member of the family for others. And India में बहुत ही कॉमन था, अगर 4-5 भाई बहन हैं और घर में कुछ समस्या आ गई तो कभी कभी एल्डर ब्रदर या सिस्टर विवाह नहीं करते और कहते हैं कि चलो हम कमाएंगे और बाकी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे, और या घर के मामले में हो या कुछ भी. दिस वॉज पार्ट ऑफ आवर कल्चर. इवन छोटे से जगह में मल्टीपल लोग रहना, कई लोग एक जगह रहकर एडजस्ट करने के लिए तैयार. सो द विलिंगनेस टू एडजस्ट कम्स फ्रॉम द एबिलिटी टू सैक्रिफाइस. अगर हम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते तो फिर हर एक व्यक्ति अपने विषय में ही सोचता रहता है. सो देयरफॉर yes, this is something which India has experienced in the past. India has seen in the past. When I first went to America 2005, I was shocked that वहाँ पर रेस्टोरेंट में जब फैमिली जाता है तो हर एक व्यक्ति अपना बिल पे करता है. एक ही परिवार के 4 लोग अपना अपना बिल पे करते हैं. तो ये मेरे लिए थोड़ा कल्चर शॉक था, लेकिन वो बोला ये तो नॉर्मल है कि नहीं. तो जब हम अमेरिका से इतना टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमको सावधान रहना है कि भाई जो हम लोगों की सबसे बड़ी शक्ति है, जो धार्मिक ज्ञान की शक्ति, वो परिवार में अपने हर सदस्य को हम देने की क्षमता न छोड़ें. त्योहार उत्सव मनाना, विभिन्न प्रकार के जो बाकी बड़े बूढ़ों के प्रति सम्मान की भावना करके उनके प्रति सेवा व्यक्त करना बहुत इंटरेस्टिंग. मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि भाई इस्कॉन में हम लोग आ गए, ब्रह्मचारी बन गए. तो कई ऐसे ब्रह्मचारी हैं, लेकिन एक बहुत ही वरिंग ट्रेंड मैंने देखा पिछले 10-15 साल में कि हमारे जितने ब्रह्मचारी भाई बंधु हैं, उनके घर पर जो माता पिता हैं, जैसे जैसे वो बूढ़े हो रहे हैं, they are expressing their preference to stay closer to their brahmachari son rather than to their married sons. तो मैंने कहा यार ये तो उल्टी गंगा बह रही है. तो बहुत सारे केसेस रिपीटेड बढ़ते जा रहे हैं वो, और विधवा होने के बाद माँ भी बोलती है नहीं नहीं मैं अपने वो उनके साथ नहीं रहना. 3 भाई हैं, मैरिड हैं, बोलते नहीं चौथे के साथ जो ब्रह्मचारी वहाँ पे क्यों. घर घर की कहानी. सो द विलिंगनेस फॉर अ फैमिली टू एडजस्ट, सैक्रिफाइस एंड लिव एज अ हार्मोनियस यूनिट, विच वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड बाय इंडिया, भारत,
for thousands of years is in serious threat. क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी एक झटका था. मैंने कहा और कई कन्वर्सेशंस मैंने किए कई परिवारों के साथ कि भाई ये क्या प्रॉब्लम. नहीं, क्यों? ईगो बढ़ रहा है. जैसे ईगो बढ़ेगा परिवार के ऊपर और संबंधों में आक्रमण होगा ही. सो देयरफॉर दिस स्वर्गीय रस इज अ कॉन्सेप्ट वेयर भारत के जितने परिवार थे वो आपस में जो कुछ भी था वो परिवार के अंदर मिटाने के लिए तैयार थे, समस्याओं का समाधान करके एक साथ रहने के लिए तैयार थे. ये कम होता जा रहा है और पार्थिव रस की ओर हम लोगों के परिवार और पारिवारिक जो संस्कार हैं बढ़ते चले जा रहे हैं. तीसरा जो कि राम राज्य के समय का था, जिसके ऊपर मैं लक्ष्मण की परिभाषा दे रहा हूं, वो है वैकुंठ रस. वैकुंठ रस अर्थात जिस परिवार में भगवान केंद्र हो, आध्यात्म केंद्र हो, परिवार के सारे सदस्य ठाकुर जी को परिवार का मूल मानकर चल रहे हों, और जिस घर में ठाकुर जी की पूजा हो, हम भारत में कितने हिंदू धर्म के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पूजा प्रक्रियाएं हैं, जो कोई भी हो, लेकिन छोटा सा बच्चा जब अपने माता पिता और अपने दादा दादी नाना नानी के साथ प्रतिदिन कुछ इस प्रकार के संस्कार के विषय में सीखता है, देखता है, तो उसके अंदर एक भावना आती है कि भाई हमारे ऊपर भी कोई सत्ता है, कोई शक्ति है जिनके सामने हम नमन करें. एंड ही गेट्स द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग अ हायर विल, because all kinds of stress statistics which you are seeing is all caused only because of one thing. The cause of fear and stress is only one. There is only one cause of fear. What is that? Change. Change is the cause, root cause of all fear. And therefore, Prakriti, nature is always changing, Kala, time is always changing, Karma, action is always changing. But two things don't change, Atma and Paramatma. So Sanatan Dharma tradition was begin the day by focusing on things which do not change and can never change, and no power can change. Atma cannot change, Paramatma cannot change, relationship of seva between Atma and Paramatma can never change. So when you begin the day with that prayer, and that was the definition of prayer, प्रार्थना, कि भाई मैं भगवान का ही निमित्त हूँ. आज दिन में 9 बजे से लेकर सुबह से रात के 9 बजे तक मेरे जीवन में, मेरे दिनचर्या में, मेरे कैरियर में, बिजनेस में बहुत सारे परिवर्तन होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी सेवा करने की क्षमता और शक्ति मुझसे कोई नहीं छीन सकता. उस प्रार्थना के साथ जो आत्मविश्वास का संचार होता है उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता. एंड दैट इज हाउ इंडिया वॉज फंक्शनिंग प्राइमरीली, भारत. तो अब यहां पर बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि बिजनेस मीन्स चेंज, and the business leaders are precipitating and initiating change, and then the market also imposes change. So in the midst of all that change, anxiety, stress, insecurity is but natural, but we are not preparing ourselves for that change with a good dose of immunity in the morning. तो इसलिए the role of spirituality in the growth of business is very very crucial. कि भाई 2021 अप्रैल मई में जितने लोगों की मृत्यु हुई उसमें 30s and 40s के भी बहुत सारे लोग थे. क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन थी. कोमॉर्बिडिटीज भले नहीं थी, लेकिन लाइफस्टाइल इतना उनका ऑफ था कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम थी, तो कोरोना के प्रभाव में वो आ गए. तो स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा रोल बिजनेस में क्या है? आपके मानसिक इम्यूनिटी को
ऐसे तैयार करेगा जैसे आपने कहा रेजिलियंस, कि भाई हर प्रकार के परिवर्तन और चेंज को झेलने की क्षमता। और यही रामायण में रामचंद्र जी कहते हैं, भाई कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है कि नहीं? क्योंकि आपको पता है क्या हुआ, दशरथ महाराज ने पूरे अयोध्या नगरी को बुला लिया, कहा कि मैं रिटायर हो रहा हूं, रामचंद्र को राजा बनाने वाला हूं। बड़ा धमाका हुआ, जोरदार लोगों की गूंज उठी। दशरथ महाराज ने मंत्री को बुलाया और कहा, इतनी जोर से आवाज क्या थी ये? जैसे मैंने रिटायरमेंट का और रामचंद्र को राज्याभिषेक करने की घोषणा की, लोगों की इतनी बड़ी गूंज आई, क्या थी? मंत्री ने कहा, ये गूंज का कारण ये था कि नागरिक कह रहे हैं कि पिछले 60,000 वर्षों से जो दशरथ महाराज अयोध्या के राजा रहे और कई डिसीजंस लिए, कई निर्णय लिए, 60,000 ईयर्स में दशरथ महाराज का ये बेस्ट डिसीजन था। तो दशरथ अचानक इनसिक्योर हो गए, बोले मैं इतना नालायक हूं क्या कि मेरे जाने के लोग जश्न मना रहे? तो मंत्री ने कहा, नहीं, इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, यू हैव डन योर बेस्ट, बट योर सन इज सुपर एक्सेलेंट। तो क्या करें? तो इसलिए वी आर डीलिंग इन अ वर्ल्ड दैट प्री इंटरनेट चेंज वॉज ऑलवेज देयर, बट पोस्ट इंटरनेट the change is happening at unmanageable speed. The kind of talent which will be thrown at us, the kind of ideas which will be coming through, the kind of changes which are going to happen in the global economic stage and political stage is such that if we do not have control over our 9 p.m. to 9 a.m., we will lose control over our 9 a.m. to 9 p.m. So if all of you want to have a take-home message from me today, it is that the spirituality domain is what you do between 9 p.m. to 9 a.m., which will prepare you for your business which you do between 9 a.m. to 9 p.m. And therefore, the kind of immunity it will create towards attacks caused by changes, and most importantly, clarity in decision making. Because leader means what? He has to constantly deal with problems, complexities, changes, difficulties. And at that moment, you have to make decisions. And the whole Gita was spoken to whom? Arjun. And what crisis was he experiencing? Decision-making crisis. So therefore, Arjuna was the number one warrior, most successful person. But suddenly he went through a decision-making crisis. Should I kill or should I not kill? And so the Gita was spoken for 1 hour, not before battle, not after battle, but before battle. है कि नहीं? कई बार लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारा बिजनेस मेरे जिंदगी का खत्म हो जाए उसके बाद के लिए अव्वल है. But not in business. Role of spirituality after the growth of my business is more relevant topic. एक मैं एयरपोर्ट में जा रहा था, अचानक पीछे से आवाज आई, स्वामी जी रुकिए. मैं रुक गया, पीछे मुड़ा. बहुत ही एक वयोवृद्ध व्यक्ति आए और कहा, स्वामी जी भगवत गीता है क्या? मैंने कहा है, लेकिन मंदिर में यहाँ नहीं है. तो कहते हैं, मैं अभी ऑलमोस्ट 80 ईयर्स का हो गया हूँ, सोच रहा हूँ कि अब गीता पढ़ना शुरू करूँ. मैंने कहा अच्छा, करते क्या हो? उन्होंने कहा मैं सीए हूँ. मैंने कहा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट? उन्होंने कहा नहीं, कंप्लीट आराम. तो गीता में यही कहा है ना कि जब सब कुछ हो जाए उसी के बाद आध्यात्म अपने जीवन में लाना चाहिए. मैंने कहा ऐसा नहीं. एक हमारे कोई मित्र हमारे ब्रह्मचारी बनने मंदिर ज्वाइन हो गए, तो उनके पिताजी आके मेरे से झगड़ा करने लगे, मेरा लड़का मंदिर में क्यों आ गया, ये कोई उम्र है क्या मंदिर में आने की?
ज्वाइन होने की, वो जब मेरे उम्र का होगा तब मंदिर में आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बेटे को जाने दीजिए, आप आ जाइए। वो घबरा गए, मुझे देख के बोलते हैं घर पे पूछ के बताता हूँ। अगले दिन आके बोले बेटे को ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है समझने का, क्योंकि हाँ कई कम्युनिटीज़ को हम लोग बोलते हैं ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, जो भी हैं। इज़राइल में गया हूँ मैं, जेरूसलम में देखा, वहाँ पर एक हफ्ता आई वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इज़राइल, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, एज अ स्टेट गेस्ट फॉर अ फैम ट्रिप। एंड व्हाट वाज द एजेंडा? अरे इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका जा रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट यूके जा रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स यूरोप जा रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। अरे हमारे पास कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कमी नहीं है, अपने साइंटिस्ट को भी नोबेल प्राइज मिल रहा है, सब कुछ है, इंडियन स्टूडेंट्स इजराइल क्यों नहीं आ रहे? तो उन्होंने कहा आप थोड़ा आइए, घूम के जाके फिर थोड़ा ब्रांड कीजिए हमको कि इंडियन स्टूडेंट यहाँ भी आए। तो वहाँ घूम कर एक हफ्ता मैंने देखा, मैंने उनको कह दिया एक ही प्रॉब्लम है, चारों तरफ से बंदूक आपके ऊपर लगी हुई है, इसको देख के कौन आएगा यहाँ से? बाकी देखा जाए तो टैलेंट की कोई कमी नहीं। बट देयर आई सॉ हाउ इवन द यंग जनरेशन इज given the full experience and training in how to engage in their rituals and prayers. समझ रहे ना? तो ये मैं कहता हूं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भले हम जागरूकता ला पाए, लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन स्पिरिचुअलिटी का, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो परिवार है, वो फैमिली है। और जब तक परिवारों के अंदर ये जागरूकता नहीं आएगी कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस देकर घर के हर सदस्य को इसके अंदर जागरूक करने का एक प्रयास करें, तब तक वो नहीं हो पाएगा। सो इसलिए द वर्ड लक्ष्मण बेसिकली मीन्स लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिर्प्राण इव पर। वो लक्ष्मी संपन्न थे, क्यों? कौन सी लक्ष्मी? रामचंद्र जी के चरणों के प्रति सेवा रूपी लक्ष्मी। What was the wealth which Lakshman had? The opportunity to serve Ram. इसको कहते हैं वैकुंठ रस। जब आपका परिवार हो, चाहे आप बड़े आलीशान महल में हो या कुछ भी हो, भगवान श्री कृष्ण ने ज़्यादा समय पांडवों के साथ बिताया, क्योंकि प्रहलाद महाराज की कथा के बाद युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था कि अरे प्रहलाद महाराज कितने सौभाग्यशाली, नरसिंह देव खास उनके लिए प्रकट हुए। तब नारद मुनि कहते हैं यूयम लोके बतभूरि भागा लोकम पुनानाम मुनयो वियंती येषाम ग्रहणाम वसते इति साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। अरे युधिष्ठिर महाराज, आप लोग कोई कम हो गया? आप लोग संगमरमर के बड़े बड़े महलों में रहते हैं, जंगल के अंदर बैठकर तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, उनको छोड़कर श्री कृष्ण ने ज्यादा समय आप लोगों के साथ आपके संगमरमर के महल में बिताया। बिकॉज द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, बट कॉन्शियसनेस, चेतना। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अपनी चेतना में परिवर्तन आता है, और चेतना जब परिवर्तित होता है तो हमारा इंटेंशन प्यूरिफाई होता है। फ्रॉम फियर, डिजायर, एटलीस्ट वी कम टू ड्यूटी, एंड बियॉन्ड ड्यूटी इज लव। इन एवरी रिलेशनशिप देयर आर 4 प्रॉब्लम्स: स्कैर्सिटी, impediment, discomfort, unhappiness. Still, if the relationship continues, it is love. And love is not equal to pleasure. Love is equal to pain. And that's what Lakshman demonstrated. Went through so many difficulties, but that was his real wealth. Kshatriya never serves another Kshatriya. Each Kshatriya needs his own domain. What is Ramayana demonstrating? That for Lakshman, owning a kingdom
was not as important as getting an opportunity to serve Ram. So Lakshman was interested in conquering the wealth of opportunity to serve. सेवा करने की इच्छा. तो इसलिए उनको कहा गया है लक्ष्मी संपन्न बहिर्प्राण इव पर. So I congratulate World Hindu Economic Forum for bringing together like-minded people, the 1 billion plus Hindu population across the world, and like people like MR in America, who have brought all the NRIs together in various forums. It's important that we focus strongly on inculcating spiritual practice within families, because that's the foundational level. And from there only, the spirituality will start affecting and impacting people. And for those who are already adults, they should realize that when they take it up, they will become a great example for the young generation. And so I am writing a new book on corporate spiritual responsibility. And that the theme is giving is healing for the giver. And I studied various traditions, Quran पढ़ा, बाइबल देखा, Jewish tradition देखा, तो सब में अलग अलग बातें हैं with respect to practice. But all have interestingly one principle when it comes to दान, 10%. अब मॉर्मन चर्च का मैं देख के आया, उनका जो बड़ा यूनिवर्सिटी है ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी इन अमेरिका यूटा, वहाँ पर 95% स्टूडेंट्स, एंड ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी इज अमंग द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ग्लोबली रैंक्ड. 95% स्टूडेंट्स आर मॉर्मन जूइश. उनको फीस नहीं देना पड़ता, फ्री. क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सिस्टम ऐसे बनाया कि हर फैमिली बचपन से ही 10% उनके माता पिता रेगुलरली देते रहे हैं. तो वो सब उन्होंने पूरा ट्रैक करके फैक्टर किया है. एंड दिस मॉर्मन चर्च एवरी ईयर इज गिविंग अ डोनेशन in social projects of $2 billion. $2 billion का एनुअल उनका सोशल कॉजेस के लिए चैरिटी में जा रहा है. सो दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर भारतीय ट्रेडिशन. तो इसलिए दान के ऊपर अगर अपने को विचार करना है तो आध्यात्म के बिना हम उस स्तर पर नहीं आ पाएंगे. और इसलिए आप लोग जो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से प्रकल्प आरंभ किए, बहुत महत्वपूर्ण है. तो आज के मेरे चर्चा का मूल विषय रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन बिजनेस में, आई वुड ओनली फोकस ऑन दिस, दैट स्पिरिचुअलिटी इज अ सीड विच कैन ओनली बी सोन विद इन द फैमिलीज. rather than intention of selfishness, parthiv ras, sacrifice which is swargiya ras, one must try to bring in, along with the Ram temple which is opening, the consciousness of Ram within families by having a Vaikuntha ras, keeping the Lord in the center of our existence, the way Lakshman demonstrated, who is a representative of Artha. तो इसलिए रामचंद्र धर्म के प्रतीक, लक्ष्मण अर्थ के प्रतीक, भरत मोक्ष के प्रतीक, और शत्रुघ्न काम के प्रतीक, क्योंकि शत्रुघ्न की एक ही इच्छा थी, काम अर्थात इच्छा, भरत महाराज की सेवा. तो इसलिए रामायण के अंतर्गत हमेशा लक्ष्मण को राम के साथ, शत्रुघ्न को भरत के साथ, अर्थात अर्थ को धर्म के साथ और काम को मोक्ष के साथ रखा गया. और जैसे ही इस ढांचे को आप बदलोगे और धर्म अर्थ को काम के साथ जोड़ोगे, तो आधुनिक समाज में जो उत्पात है वो देखने को मिलेगा. तो इसलिए इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम केवल अर्थ और काम की बात कर रहा है. वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम काम और अर्थ को धर्म के साथ
जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई अर्थ एंड कामा should not come directly together. Artha should come in contact with dharma, and then kama in contact with moksha. That is the narrative of Ramayana as given by Valmiki ji. And as we are celebrating the appearance of Lord Ram in Ayodhya in the new temple, I think it's a very important moment for all of us to increase the awareness of inculcating and applying this in each one of our own lives, within our families, within our children. And I thank all of you, and especially Shweta ji, for your kind words of introduction at the very beginning. And we hope and pray that we can come together and make some powerful transformations in the world together. Thank you very much.